कुछ नौकरी ढूंढ ढूंढ सक रहे थे ना, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ओवर पार करके मुझे मेरा पैशन जो है उसको आगे आने दिया। My dad has a shop of FMCG goods, a departmental store in Jamshedpur. तो मेरे डैड तो हमेशा मुझे कहते हैं कि तू कुछ और कर। बिजनेस भी खोल के दिया बापू जी ने, नौकरी भी ऐसे टेबल पे धर के दे दी कि बेटा अभी 25,000 रुपये तनख्वाह शुरू हो जाएगी। वो आप जो 27 साल पहले की बात कर रहे हो, आज मतलब मेरी मंथली इनकम जो है वो कोई 2.5-3 लाख रुपए सरकारी होती। You said कि कई बार आपको लगता है कि वैलिडेशन नहीं मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के। I think yeah, that's a very basic human nature. आप प्रोजेक्ट करते हो and if it doesn't reach, उसका वो रीच नहीं होता है जो होना चाहिए, कई बार लगता है यार ये क्या हो गया, हमने तो हर प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से ही बनाई जाती है। But as an actor, I think it's a part and parcel of the job. It's such a gamble. This film industry is a gamble. You never know what works, what doesn't. This is Nawaz Kochra joining you on Indian Express Screen, and I am here in conversation with the very amazing team of Shabad. Hello, how are you all? All good. All good. Amazing. You know, it is one thing to bring a story which is so high on emotion. You know, there is such brilliant writing, so much thought put even behind the title of the show. And then it is a different thing when two such brilliant actors who have always chosen performance-driven roles come to, you know, collaborate with a project like this. Personally, for both of y'all, what was the reason to associate with Shabad? What was the reason to associate with the Personally. Shabad Yeah. personally? Yeah, obviously the background of the story and गुरुद्वारे की के भाई जी दी कहानी है, एंड एक रागी सिंह की एक उसका कॉन्फ्लिक्ट विद द फैमिली, या उसका जो अपना प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब वो गुरुद्वारा साहब में कीर्तन करते हैं, राइट। और मेरे लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का बेसिक मुद्दा यही था कि भाई थोड़ा जब मैं भी प्रभु से जुड़ जाऊंगा, Okay. वाहेगुरु से जुड़ जाऊंगा। एज अ पर्सन तो आपकी जिंदगी में आप काफी गलतियां भी करते हो, तो चलो उसका कुछ हर्जाना ही भुगत लो, उस बहाने आप नाम तो ले लोगे ना। Right. कम से कम आप वाहेगुरु 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 तो बोल लोगे। तो दैट चैंटिंग ऑफ वाहेगुरु इज लाइक एवरीथिंग फॉर मी, राइट। एंड या सो मेरे लिए एक बड़ा रीजन तो ये था। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली द प्रोफेशनल रीजंस आल्सो। आपको यू हैव टू गेट सम मनी आल्सो, आपको घर बार भी चलाना है, Right. है ना, और आपको बच्चे भी पालने हैं। तो ऑब्वियसली यार वो तो एक रीजन होता ही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक वाहेगुरु का नाम सिमरन था इस सीरीज में, शबद में, वो मेरे को मिला। वो मेरे को मिला और कहीं ना कहीं मतलब जिंदगी के कुछ ऐसे ऐसी चीजें भी हुई हैं कि मतलब आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। नाउ आई हैव टू, नहीं ये नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, या आई गॉट माई सन। मेरे को एक पुत्र मिला उससे, है ना। और जो दो भैणों का भरा आ। So, Mihir, what about you? What was your reason? The first time when I read the script, I had multiple reasons. Okay. First being, again, as sir said, मैं आज भी गुरुद्वारा रोज जाता हूँ। रोज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत ही गुरुद्वारे से होती है। Okay. And luckily, the place where I stay here in Andheri, there's a gurudwara in walking distance, in 200 meters from my place. और अगर वहाँ सर कड़ा प्रसाद भी बनती तो कई बार खुशबू आ जाती है घर तक। oh yes, yes, So yes. it's the most beautiful feeling. You know what कड़ा प्रसाद is? Yeah. मैं तो बोलता हूँ कि अमृतसर अगर दरबार साहब में भी कड़ाह प्रसाद बन रहा होगा तो हम मुंबई में उसकी खुशबू सूंघ सकते हैं। बिल्कुल।
So the energy and the divine energy which a gurudwara or any other spiritual place has, be it mandir, masjid, church, it's divine, you know, that positive energy. So that was a very big reason to also sign this project, as sir said, ki Vaheguru ka naam japne ko mil jaye. And secondly, of course, the story and the character was so well written. The character has so much to do. It's a very layered character I'm playing as Gupinder. Of course, he's a footballer. He wants to do something in life. That's his dream, his passion. But you know, the way his inner and external conflict shows in the series. His relationship with his dad, with his sister, with his mom, with his friends. He's bullied in school because the way he speaks, he stammers. Yeah. So I had a lot of friends who used to stammer, sir, in school भी. School में मेरा best friend था जमशेदपुर में, जो हमें स्टैमर करता था. अच्छा, तो तो कई था लोग, के? हाँ सर, मतलब बहुत ही अटकता था वो. और मेरा लाइक 10th से 12th में मेरा वो, मैं उसके साथ ही बैठता था. हाँ. सो आई वाज द वन हु कुड फील हिम एंड अंडरस्टैंड हिम. बहुत लोग पूछते थे, अरे यार तू, आई वुड नॉट टेक हिज नेम, कि यार तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है. तो वो हाय, बात यही करता था कि वो yes. हाँ. ऐसे करता था और वो अटक जाता था कि, एंड वो लोग सुनते ही नहीं थे. अरे चल ठीक है, मैं जाता हूँ. I was the one who related with him in a way that seeing his vulnerability, and so he had everything. He was the richest kid in school. He had everything. घर पे कोई problem नहीं था. But still he was poor. He used to feel poor because उसके कोई दोस्त नहीं थे. And I saw that in him, and I became his best friend, and we were literally best friends in school. Wow. So मैं उसकी हर बात सुनता था, and when I got this part, I did it for him. I was like, what he faced in school, I would do this part for him, so that if he sees it, he'll be happy that Mihir ने ऐसा कुछ how किया happy मेरे he'll लिए. feel that Yeah. when he'll saw that. Yeah. So this was also one क्या reason. बात है यार, क्या बात है. Amazing. Also, you know, the story kind of talks about रीत और रिवाज. Mhm. हमारे इंडियन सेटिंग में ऐसे कभी हुआ है कि अपने पर्सनल लाइव्स में भी आप लोग रीत और रिवाज की वजह से आपको आपका ड्रीम बैक सीट पर रखना पड़ा हो, या यू नो यू हैड टू फाइट द रीत रिवाज वाला क्राइटेरिया टू यू नो मीट योर ड्रीम? अगर हम वो रीत रिवाज वाला क्राइटेरिया फाइट करते तो हम शायद यहाँ तक नहीं होते. होते. Because we both are following our passion. राइट, एग्जैक्टली. So yeah, हाँ. both been very चलो, lucky. हम लकी इसलिए हैं कि मिहिर के पेरेंट्स भी उनका साथ उन्होंने दिया, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली ने भी मेरा साथ दिया. तो रीत रिवाज हमारा क्या था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी कर रहा होता. अच्छा. हाँ, क्योंकि माय फादर वाज इन गवर्नमेंट जॉब, हम्म. तो वो मेरे लिए तो कुछ नौकरी ढूंढ सक रहे थे ना. लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ओवर पार करके मुझे मेरा पैशन जो है उसको आगे आने दिया. हम्म. तो ये उनकी ग्रेटनेस है. आई रियली थिंक सो. एंड या मेरे ख्याल से हर, मतलब आज मुझे नहीं लगता यार मिहिर के आज की डेट में कोई हम लोग इतने रूढ़िवादी हो चुके हैं Mhm. एब्सोल्युटली. कि भाई नहीं, हमें तो जो है बाप दादा का वही कर. वही कर. नहीं बॉस, अभी दुनिया बहुत आगे निकल गई है. हम अलग जनरेशन में पहुंच चुके हैं, हमारे बच्चे अलग जनरेशन में पहुंच चुके हैं. And there are ये so many अलग different thinking fields है. and Yeah, so many different arenas you can Obviously. explore. yeah. So actually, sorry to interrupt you, पता है मेरे डैड तो मुझे कहते थे कि my dad has a shop of FMCG goods, a departmental store in Jamshedpur. तो मेरे डैड तो हमेशा मुझे कहते हैं कि तू कुछ और कर. आटा बेच. And वही से सारे. अच्छा, he never wanted to sit. He never wanted me to sit in the shop. Okay. He still runs that shop. He never Nice. wanted me to sit. He was like, तू कुछ और कर, वाओ, कुछ और ट्राई कर. देखो यार, मैं नहीं क्या बोलूंगा तू ये क्या. And still like people, my dad's friends used to ask him कि आगे कौन बढ़ाएगा इस दुकान को. He was like, क्यों आगे बढ़ाना है, कुछ और करेगा, कुछ और Wow. जो उसका इच्छा है वो करेगा. अरे यार कमाल. Absolutely. So he Salute- still says salute कि, him, salute. and I am like it's my dream, as I said before also, that it's my dream to like get him here. कि अब आप कितनी मेहनत करोगे पापा, अब आप इधर आ जाओ. तो वो मेरा, आई एम ऑल्सो लाइक वर्किंग फॉर देम इक्वली, Absolutely. फॉर माई सेल्फ, फॉर माई पैशन एंड ऑल्सो फॉर देम, Wow. कि मैं जल्दी से उनको यहाँ बुला लूँ. बिकॉज ऑल्सो वॉट they saw in me and they let me do what I wanted to do. Absolutely. But you know, sir, 27 साल पहले, when you know, and for you 7 years ago, when you know, both of y'all don't have connections to the industry as such.
Yeah. सो जब आप लोग यहाँ आ रहे थे, कहीं ना कहीं फैमिली को वो स्केप्टिसिज्म कभी नहीं रहा कि इट्स अ वेरी अनसर्टेन इंडस्ट्री ऑल्सो? तो ऐसा कभी कुछ थॉट आया या डिस्कशन हुआ कि तुम बिल्कुल। ये कर रहे हो, तो व्हाट इज द, हाउ कैन यू जस्ट डिपेंड ऑन दिस? बिल्कुल था, मतलब सो व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मुझे एक्टर बनना है एंड मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो मैं मुंबई सिर्फ एक्टर बनने नहीं आया था. ओके, आई प्लेड वेरी स्मार्ट. आई ऑल्सो डिड माई कॉलेज हियर. सो मेरा ये था कि मैं सिर्फ एक्टर बनने नहीं जा रहा हूँ, ऑडिशंस दूंगा, खाली बैठूंगा, काम मिले मिले, नहीं मिले तो मैं बैठे रहता हूँ. बिकॉज मुझे पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर हो सकता है, तो यू हैव टू बी बिजी समवेयर. राइट, तो इसलिए मैंने अपनी डिग्री यहीं की, कॉलेज. आई डिड माई लाइक कॉलेज हियर इन बॉम्बे, बैचलर्स इन कॉमर्स. And from the very first day I started auditioning. So they were also very content कि चलो मिहिर कॉलेज कर रहा है और साथ साथ as a hobby he's trying acting. If it works out, good for him. And everyone in my family has done MBA, like my sister, my brother, this current generation of in my family. So मेरा भी यही था कि कॉमर्स करके MBA करना है, क्योंकि CA जितनी पढ़ाई तो मैं कर नहीं पाता. That requires a lot from you, and it's also very skeptical. कई बार पढ़ के भी सर लोगों का CA क्लियर नहीं होता कितने कितने सालों तक. So MBA was the safest option. But so in my graduation, during the 3 years of my graduation, I started getting a lot of projects, ads and stuff, and it's also a well-paid job. So I told my parents, see, I'm also getting paid well, and eventually, you need to earn money, and I'm also happy earning money yeah, from what I'm doing. So they were like, chalo, theek hai, you can continue doing this. So they were also very happy. So जब मनी इनफ्लो भी दिखने लग जाए, एंड देखने ये भी दिखता है कि your son or your daughter is happy, so they do let you follow what you want to. But of course आज भी skeptical रहते हो कई बार, true. because it's such an uncertain profession, sir. कई बार आप हाँ. 2 महीने 3 महीने 4 महीने Graph is never 6 महीने आप कई बार Yeah. बैठ सकते हो, and you don't know when's the next project you land. So that's the time again when they think कि अरे कुछ और कर ले, ये कोर्स कर ले, वो कोर्स कर ले, which is right. Your income should always be flowing, so you should always have a plan B in mind, I would say. Absolutely. What about you, sir? अ, 27 साल नहीं, पहले आपके साथ कभी ऐसा अपना डिस्कशन? तो भाई क्लियर था शुरू से, फंडा क्लियर था वेरी मच. और मैंने दस्तक नहीं दी किसी के दरवाजे पे जाके, मुझे बुलाया गया. ओके, अ, मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया फ्रेंकली स्पीकिंग बॉम्बे में रह के, क्योंकि एक तो शहर बड़ा भाग दौड़ वाला है, और हम लोग आए वहाँ पंजाब की खेत छाड़ के, है ना, कस्सी चलाते हुए, मोटर ट्यूबवेल का पानी लगाते हुए. तो समहाउ मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार नहीं, शायद मैं नहीं शायद सरवाइव, क्योंकि यहाँ की डेली लाइफ में नहीं सरवाइव कर पाऊंगा. मतलब बेमतलब भाग रहे हैं लोग यार, मतलब इतना कुछ हो रहा है ये सब. तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो वहाँ वो 2-4 लोगों के बीच में सुखी हूँ. पर चलो जाके बैठ गए, तो बुलाया ना फिर यहाँ, इसी नगरी ने बुलाया, और यहाँ पे आके काम किया. आता हूँ, काम करता हूँ, अपने घर पे वापस चला जाता हूँ. और लेकिन जो एक ख्वाब था शुरू से कि बनना है तो एक्टर ही बनना है, और कोई काम अपने लायक है ही नहीं, लिटरली नहीं है. मतलब बिजनेस भी खोल के दिया बापू जी ने, नौकरी भी ऐसे टेबल पे धर के दे दी कि बेटा वही 25,000 रुपये तनख्वाह शुरू हो जाएगी. वो आप जो 27 साल पहले की बात कर रहे हो, आज मतलब मेरी मंथली इनकम जो है वो कोई 2.5-3 लाख रुपए सरकारी होती. पर नहीं, उस चीज़ को चुना नहीं. स्ट्रगल जिस चीज़ में था कि इसी में करना है, आया, इस नगरी ने बुलाया, अपना काम किया और चले गए वापस. सो आई hats off to all my directors and all my producers. Yeah. Absolutely. And my co-actors, obviously. Yeah. And Love. आप दोनों ने इतना अच्छे से अभी थोड़ी देर पहले बोला कि you all have such progressive fathers in your life, contrary to the character that we Yeah. see Yeah. in Shabad also.
you know, हमने for sometimes I feel in an Indian setting we have made a template that, you know, fathers के related हमने एक ये बना दिया कि fathers are supposed to be strict, they are supposed to be a certain way, their job is to discipline. Also, do you all agree with this, you know, typical template, yeah, that typical image of a father that we all have in our heads? No, I think there are a couple of films in which a dad is seen as a best friend Yes, to a absolutely. तो अनुपम खेर और पूजा भट्ट हाँ ये कौन सी फिल्म थी? वो अनुपम खेर और पूजा भट्ट की का फादर बनता है ना, मेरी बेटी भाग गई मेरी बेटी, व्हाट वाज द But फिल्म, that is पापा that daughter कहते dynamic. हैं. I'm talking about Anupam dad, Anupam son. Kher and also हाँ dad's son Anupam Kher and Shahrukh in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Yes, absolutely. That is a very good dynamic to say. True. So I think we have always had this amalgamation of like characters and films. So yeah, I don't think like we only have a very strict dad and Right. gullible son. हाँ. We've seen both sides of dads. क्योंकि मैं तो फिल्मों की बात तो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज हम लोग वो तो एक डिमांड होती है ना, कहानी की डिमांड है, एक्टर को हायर किया आपने, उसको कैरेक्टर करना अपना करके चला जाता है, बट फिल्म्स आर आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल लाइफ ना. True, very true. तो रियल लाइफ में अगर कोई अच्छे फादर हैं तो तभी हम फिल्मों में अच्छे फादर भी दिखाते हैं, बुरे फादर हैं तो हम बुरे फादर भी दिखाते हैं. Yeah. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं अपने बच्चों के साथ विचरा हूँ या अपने पेरेंट्स के साथ, तो मुझे कोई बुराई इसमें रिलेशनशिप्स में नज़र आई नहीं. फादर सन या फादर डॉटर्स, राइट, अगेन द फादर सन. तो मुझे लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं वक्त की डिमांड ज़रूर है. जिस तरह का समय चल रहा होगा उसी तरह की ही चीज़ें हो रही होंगी. अगर वो वक्त था कि हम बैलगाड़ियों में सफ़र करते थे, है ना, उसके बाद हमें ट्रैक्टर मिले देखने को, फिर हमें ट्रक्स मिले, फिर हमें गाड़ियाँ मिली, फिर स्कूटर्स भी आए बीच में, है ना, और आज अगर हम हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं या मेरी बेटी को कुछ चाहिए तो इजीली अवेलेबल, राइट. तो मेरे ख्याल से ये एक जो वक्त का पहिया जो है वो घूम रहा है ना. हमने फायर डिस्कवर की, हमने व्हील डिस्कवर किया, तो वो पहिया जो डिस्कवर कर दिया ना व्हील वाला, तो वही चल आगे इसको लेके जा रहा लाइफ को. Absolutely. तो या डेफिनेटली यार अच्छे पिता भी हैं मेरे जैसे, ऐसे नहीं है कि सारे बुरे ही होते और हैं. अच्छे बच्चे भी है मेरे जैसे. Exactly, वही मैं यही कि, you know, fathers sometimes are so misunderstood. Yeah. आपने शायद इसका एंड नहीं देखा ना. हाँ. एंड इस शो का. मैं अब एक शो का सिर्फ ट्रेलर ही देखा वी डोंट हैव टू डिस्क्लोज दैट आल्सो. पिक्चर अभी बाकी है. आप एक बार एंड देखना कि वो तो चलो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बाप बेटे के अंदर या जो भी है, लेकिन उसका अंत कहाँ होता है? ठोको ताली. ठोको ताली. Also, both of y'all are such amazing. लव यू सिद्धू साहब. Love you too. So Both of y'all are such amazing performers. You know, आप लोगों ने, like, you know, from whether it is Super 30 or State of Siege, for you, whether it's been Kohra, Cat, or, you know, Chauthi Koot or any project like that. You know, despite giving your best, there have been certain projects which have been called your breakthroughs. For you, it's been the Archies. For you, it's been Kohra. Oh yes. So, yes. you know, when इतना अच्छे performances देने के बाद भी the validation comes late. Sometimes as an actor, do you also feel disappointed in that कि यार इतने, you know, like for example, Kohra released in 2023, but उसके पहले जो इतने साल की जर्नी रही है उसमें वो validation शायद नहीं आया जो आना चाहिए था. As an actor, do you feel bad कि, you know, यार जो लोगों ने potential इसमें देखी वो काश पहले देख ली होती? नहीं, डेफिनेटली यार, मतलब मैंने पंजाब में इतना काम किया है, कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं जो मैंने छोड़ा हो, चाचा, ताया, मामा, फुफड़, भरा, भतीजा, व्हाटएवर. आप किसी भी रिश्ते का नाम ले लो, छोटे छोटे, एक सीन, दो सीन. लेकिन जब बलविंदर ने ये चीज़ फॉर द कैट ना,
द डायरेक्टर बलविंदर जंजुआ एंड द शो रनर। तो जब उसने डिस्कवर की ना ये चीज़, तो उसने एक ही सवाल पूछा, कहता पाजी यार कितना काम किया आपने, इतना काम किया हो आप। वो जितना भी था, म्यूजिक एल्बम्स, मेरा सब कुछ है ना ऑल। तो लेकिन हाँ, वो एक चीज ऐसी होती है कि जो आपका माइलस्टोन शायद तय करती है ना। तो माइलस्टोन वाज आल्सो अ फिल्म फॉर मी। तो जब मैं वो फिल्म कर रहा था, इट वाज अ इंडिपेंडेंट, Okay. इवान अय्यर की फिल्म थी, और that went to Venice Film Festival, Oh. right? And I won Best Actor in Singapore Film Festival, Wow. or film won Best Film in uh, uh, Venice, and Best Director in Venice. That was Meel Patthar, no? या मील पत्थर, माइलस्टोन। तो वो ना, जब मैं फिल्म कर रहा था, तो अब इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के पास कितना पैसा होता होगा, तो उन्होंने कुछ ऑफर किया। मेरे को लगा यार, मैं कहा यार पाजी पैसे कम है। तो ही सेड के पाजी सुंदर जी, आप ये फिल्म एक, इसका नाम माइलस्टोन नहीं है सिर्फ मील पत्थर, ये आपकी जिंदगी के लिए एक माइलस्टोन है इन योर करियर। मैंने कहा यार बड़ी बात बोल दी, खटैक। मैंने कहा चलो करेंगे। फिल्म की, कोविड आया, लोगों ने फिल्म देखी, एंड वहीं से मेरे को पिक किया बलविंदर जंजुआ ने फॉर कैट, और कैट के बाद कोहरा, रेस्ट इज हिस्ट्री, Right. Yeah. राइट। एंड चलो चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, मैं तो अभी Z5 की ही बात करूंगा, Z5 ओरिजिनल। तो ये कहीं से भी ढूंढ के ले आते हैं आपको। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहो ना, जो कंटेंट को चाहिए, जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, एक्टर ऐसे ऐसे खींच के ले Yeah. आएंगे। इसको भी ढूंढा है, मुझे भी ढूंढ के लेके आए हैं। Right. मैं तो वहाँ खेती कर रहा था ना, खेती करता करता ले आए भी, आप में टैलेंट है, आप दिख रहे हो, आप लगता है कि आप बन सकते हो मेहर के पिताजी, तो ले आए। सो I would like to answer that question Yes. too. See, as an actor, you said कि कई बार आपको लगता है कि validation नहीं मिल रहा है इस project के. I think yeah, that's a very basic human nature. आप project करते हो and if it doesn't reach, उसका वो reach नहीं होता है जो होना चाहिए. कई बार लगता है यार ये क्या हो गया, हमने तो हर project बहुत मेहनत से ही बनाई जाती है. But as an actor, I think it's a part and parcel of the job. It's such a gamble. This film industry is a gamble. You never know what works, what doesn't. ठीक है, आपने अपना काम 100% दिया ना, आपने पूरी मेहनत से की, फिल्म नहीं चले, शो नहीं चले, वो अब ऊपर वाले के हाथ में और ऑडियंस के हाथ में है। आप जिस चीज़ पे आपको कंट्रोल नहीं, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो हमें अपना काम बखूबी निभाना है, 100% देना है, और आपका काम अननोटिस नहीं जाएगा कभी भी। There are people who are noticing your work. yes, There are fans who are messaging me, like till date people are messaging me, I have seen that short film of yours, and I'm छोटे like, से छोटा काम और भी, मैं कई बार yes, सोचता हूँ कि अरे ये recognize शॉर्ट होगा। फिल्म किसने देखी है, yes, क्योंकि कई बार हम कर लेते हैं कि चलो ये कर लेते, पर देयर आर पीपल हु नोटिस ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ योर्स इन लाइफ, दे फॉलो यू रिगरसली, सो आपका योर वर्क विल नेवर गो अननोटिस। और जैसे सर ने कहा कि Z5 हो या कोई भी चैनल हो, वो आपको कहीं से भी उठा कर ला और सकते हैं। ये तो आप सोच भी नहीं सकते ना मिहिर, इसके ये तो इसके बाद तो स्टार है, सुपरस्टार है ना। मैं भी कहीं थोड़ा बहुत पहुंचूंगा। ठीक है, अरे यार। ये और किन हालातों में हमने ये शूट किया है, ओह गॉड, किस सिचुएशंस में हमने ये शूट किया है। मतलब सबको वायरल हो रहा है, सबको जुकाम हो रहा है, गले दर्द, बुरे हाल, और आपके चीखने चिल्लाने वाले सीन्स हैं। वो जो My God. बूट, आपको बूट, हाँ। बूट लेके फेंकता है उसमें आग में, है ना। तो ये इसको तो रोक नहीं सकता कोई भाई। So I can without a doubt say that this project ओहो, has mentally, physically, emotionally, logistically has been one of my toughest projects till date. Wow. This has been. same with me. And I'm Toughest. sure it's going to do the wonders that it I is. really hope. Absolutely. Fingers And crossed. before we wrap this up, you both have an interesting lineup also.
Tell me about it. What can we expect next? पहले सर आप शबद, इसके बाद क्या? रीत रिवाज, उसके बाद ग्लोरी फॉर नेटफ्लिक्स. Hmm. एक्सपेक्टिंग 95 शुड रिलीज हो जाए तो बढ़िया होगा. या some films are also lined up. I'm doing work. Hmm. मेरे को काश मौका मिल जाए. अभी चलो वो खान साहब तो चले गए, लेकिन मेरा बड़ा मन था खान साहब के साथ एक बार स्क्रीन शेयर करने का, इरफान के साथ. तो मुझे ऐसे ही मतलब गुलजार साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, राइट. Hmm. एंड उनकी फिल्म थी माचिस, Right. जिसमें मैं अपने आप को चंद्रचूड़ सिंह देखता था. दैट कैरेक्टर पंजाब से कास्ट किए थे उन्होंने. चलो उस वक्त हमारा नहीं इतना रुझान नहीं था. लेकिन विशाल जी आज भी आई वुड लव टू वर्क विद हिम. Wow. विशाल भारद्वाज लेंगे, लेकिन मुझे लेंगे, है ना. Hmm. ऑपोजिट तब्बू डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क. ऐश्वर्या राय इज माय क्रश. मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी बोलता हूँ, तो उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिलेगा. एंड या बाकी बड़े बड़े एक्टर्स हैं यार अरे अरे बस बस लाइन में, उनके साथ मौका मिल रहा है. या so I'm lucky, really I'm lucky, really lucky. Amazing. Thank you God, thank you. And Mihir, ऑपरेशन सफेद सागर के बाद क्या हो रहा है? ऑपरेशन सफेद सागर के पहले एक्चुअली एक तो शबद है, एंड देन देयर इज दिस शो फॉर Amazon Prime Hmm. which has already been announced at the Amazon event. It's been on hold for a while. Okay. That's coming out. It's called Ma Ka Sum, as in SUM Okay. Sum. Yes, yes, And yes. I'm playing a 19-year-old mathematician who is looking for a date for a single mom. So again, it's a very distinct character. Really? हाँ, अपने एल्गोरिदम से अपनी मम्मी के लिए डेट खोज रहा है. Oh, wow. So इसमें it's a very different character from Bhupinder, and I'm that 19-year-old math prodigy. Oh. So yeah, these two projects are in pipeline right now, and I'm filming for something else next month that I can't really talk about. Abhi. Yeah. Absolutely. Well, wish you all the very best. Thank Thank you you. so much for Thank you so talking to us. It was a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you.